Good morning, dear students. Today we will read this chapter, The Selfish Giant. I hope you all have read the story of the selfish giant yesterday as I have shared the PDF with you. If you have not read, then do read it. I think that there is no need to explain this chapter word to word because all of you have read this story in your childhood. थर्ड या फोर्थ क्लास में आपने ये स्टोरी जो है वो हिंदी में पढ़ी हुई है, तो मैं इसको आपको एक कहानी की तरह सुनाऊंगी. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इसका मैं नहीं करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. देयर वॉज अ मैन, सेल्फिश वेरी बिग मैन, एक जाइंट व्यक्ति था, बहुत ही बड़ा था. एंड ही वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल गार्डन. ही वॉज द ओनर ऑफ अ ब्यूटिफुल गार्डन and he went to his friend's place to visit him, and he stayed there for so many years, almost I think 3 to 4 years, and till that time the garden was so beautiful, full of flowers, full of birds, full of fruits and so many other things. The butterflies were in the garden, and the children of that area used to enjoy in that garden. They used to play when they come back to school. They used to go in the garden of the selfish giant, and they used to enjoy there a lot. What happened one day, the giant came back from his friend's place and he saw that the so many children are playing in his garden. They are running, they are playing, they are eating the fruits, they are enjoying. So he became very angry and he shouted badly that all of you leave my garden. My garden is for me only and no one will enter in my garden. So all of you should leave my garden immediately. So in this way what happened, that all the children frightened from the selfish giant and they ran away at once from the garden. वो सबके सब वहाँ से जो थे डर के भाग गए. अब क्या हुआ, जब जैसे ही वो जो बच्चे थे वहाँ से भाग गए तो उसने क्या किया, सेल्फिश जाइंट ने अपने गार्डन के चारों तरफ एक वॉल बनाई, एक ब्रिक्स से वॉल बनाई और उस पे और उसने एक बोर्ड लगा दिया. उसमें क्या लिख दिया, trespassers will be prosecuted. What is the meaning of this line? Trespassers will be prosecuted means जो भी बाहरी व्यक्ति मेरे गार्डन में आएगा उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा. ओके. एंड व्हाट हैपेंड कि ऐसा करने से क्या हुआ कि जो भी बच्चे थे वो डर की वजह से उसके गार्डन में आना उन्होंने बंद कर दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ गई, बहुत विंटर सीज़न आ गया और वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, तो पूरा जो गार्डन था वो स्नो से कवर्ड हो गया. ग्रीन लीव्स जो थी वो स्नो से कवर्ड हो गई. नॉट अ सिंगल ग्रीन लीफ वॉज विजिबल देयर, नॉट अ सिंगल फ्रूट वॉज विजिबल देयर, नॉट अ सिंगल बर्ड वॉज विजिबल देयर. So in this way everything was covered with snow and snow. After that what happened, the autumn season came, and after that the spring season came. So we all know that spring season is all about the happiness. In spring season flowers bloom, birds used to chirp in the garden, and the fruits come. So in this way in all over the country the spring came, but in the giant's garden autumn remained. ओके मतलब उसके पूरे देश में क्या हुआ था, स्प्रिंग सीज़न आ चुका था, अच्छे अच्छे फूल खिल रहे थे, लेकिन उसके गार्डन में अभी तक एक भी फूल नहीं खिला था. उसके गार्डन में अभी तक जो थे वो पूरा बर्फ़ से कवर्ड था. जो हेल होती है ना, ओलावृष्टि जिसको कहते हैं, HAIL हेल, तो उससे पूरा का पूरा गार्डन उसका कवर्ड था. तो इन दिस वे नॉट अ सिंगल फ्लावर ब्लूम्ड इन हिज गार्डन. और इस तरीके से उसका जो गार्डन था, उसकी जो ब्यूटी थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी. एंड सेल्फिश जाइंट वॉज थिंकिंग दैट वाई इज इट हैपनिंग विद मी ओनली, वाई द फ्लावर्स आर नॉट ब्लूमिंग इन माई गार्डन, वाई everything is so sad in my garden, and he did not know that what is going on. So what happened after that, one morning the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music. वो यही सब सोच रहा था कि पूरे देश में स्प्रिंग आ चुका है, लेकिन मेरा गार्डन अभी इतना सूना पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी बर्ड भी नहीं आती, कोई फ्लावर भी नहीं आता है. तभी वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, तभी उसने सुना कि बहुत सुंदर सा एक म्यूज़िक उसके कानों में पड़ा. तो उसने उठ के देखा तो क्या था, बहुत जो एक उसको लगा कि कोई जो राजा है उसके म्यूजिशियंस यहाँ से निकल रहे होंगे, तभी इतना सुंदर म्यूज़िक यहाँ पे प्ले हो रहा है. लेकिन जब वो उठ के उसने देखा तो विंडो के पास उसके गार्डन में जो ब्यूटीफुल बर्ड्स थी वो गाना गाने लगी थी, जो कि इतने दिनों से नहीं गाना गा रही थी, वो उसके गार्डन में आ गई थी.
और जो नॉर्थ विंड थी जो कि रोर कर रही थी इतने दिनों से, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, उनका बहना भी बंद हो गया था और बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू उसके पूरे गार्डन में फैल चुकी थी। तो क्या हुआ, वो एकदम से अपने बेड से जंप किया उसने और बहुत ज़्यादा खुश हो गया और क्या बोला अपने आप से, आई थिंक द स्प्रिंग केम, मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है। फिर उसने अपने जो खिड़की थी उसे झांक के देखा कि बहुत ही वंडरफुल साइट थी उसके गार्डन की। उसने जो दीवार बनाई थी उसमें एक छेद हो गया था, एक होल हो गया था, एक पास बन गया था और उसमें से जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि अब पहले रोड पे खेलना पड़ता था उनको क्योंकि सेल्फिश जाइंट ने तो अपने गार्डन को बंद कर लिया था, तो सारे के सारे बच्चे वो जो थे रोड्स पे खेलते थे वो अब आके उसके गार्डन में खेलने लगे थे। और उन बच्चों के खेलने से क्या हुआ था, जो ट्री के ब्रांचेस में बच्चे चढ़ रहे थे, खेल रहे थे, कोई यहाँ दौड़ रहा था, कोई वहाँ दौड़ रहा था, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। तो बच्चों के आने से क्या हुआ, जो सेल्फिश जाइंट का गार्डन था वो एकदम बहुत फिर से पहले जैसा हो गया। सारे पेड़ों में फ्रूट्स आ गए, सारे पेड़ों में फ्लावर्स आ गए, चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा सीन उसके गार्डन का हो गया। आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि जैसे ही बच्चों ने देखा कि एक जो गार्डन का जो एक कॉर्नर था वहाँ पर अभी भी विंटर था, मतलब पूरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया लेकिन गार्डन का ये जो एक कॉर्नर था वहाँ पर अभी भी विंटर था, मतलब वहाँ पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई थी। तो वो सेल्फिश जाइंट को समझ नहीं आया और उसने क्या, उसको वो वहाँ पर गया और उसने देखा कि एक बहुत छोटा सा बच्चा था और वो छोटा सा बच्चा जो था वो कोशिश कर रहा था एक पेड़ पे चढ़ने की, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो सेल्फिश जाइंट ने पहले तो वो बच्चा सेल्फिश जाइंट को देख के डर गया कि अब शायद ही मुझे यहाँ से भगा देंगे, लेकिन व्हाट हैपेंड, सेल्फिश जाइंट उसके पास आया और सेल्फिश जाइंट का जो दिल था वो उसको देख के एकदम पिघल गया, एकदम मेल्ट हो गया, मतलब उसको उस बच्चे के ऊपर एकदम से दया आई। उसको लगा कि ये बेचारा छोटा सा बच्चा जो है कि मतलब अपने पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना सेल्फिश था और मेरी वजह से ही मेरे गार्डन में अभी तक स्प्रिंग सीजन नहीं आया, क्योंकि जब अगर मैं अपने गार्डन में छोटे छोटे बच्चों को नहीं खेलने दूंगा, उनको एंजॉय नहीं करने दूंगा, तो फिर स्प्रिंग सीजन का फ़ायदा ही क्या है। देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियाँ हैं, जो पर्वत हैं, वो हमेशा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं ना। नदियाँ अपना पानी खुद तो यूज़ नहीं करती, हम लोग यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे अपने फ्रूट्स खुद नहीं यूज़ करते, हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से उसको ये रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई एम नॉट letting my garden to be used by all of the children, then how spring will come in my garden, तो मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन कैसे आएगा। तो इस तरीके से उसने छोटे से बच्चे को गोद में उठाया और उसको पेड़ पर बिठाने लगा। छोटे से बच्चे ने क्या किया, अपने दोनों हाथ फैला के सेल्फिश जाइंट को गले लगाया और उसके चीक्स पे एक किस कर दिया। एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द सेल्फिश जाइंट वॉज किस्ड बाय समवन एंड ही बिकेम वेरी we can say very happy from inside and he realized his mistake, उसको अपनी जो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और जब बाकी बच्चों ने देखा कि सेल्फिश जाइंट जो है वो बच्चे को प्यार कर रहा है, तो बाकी बच्चों को भी ये समझ में आ गया कि ये अब जो सेल्फिश जाइंट है वो अच्छे हो चुके हैं और अब ये वैसे पहले जैसे गुस्से वाले नहीं रहे। तो सारे बच्चे दोबारा से आ गए और उनके गार्डन में खेलने लगे। और फिर सेल्फिश जाइंट ने क्या किया, एक एक्स उठा के जो वॉल उसने बनाई थी उस वॉल को उन्होंने तोड़ दिया। और 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और वो जो देखा उन्होंने 12 बजे का समय था, तो सेल्फिश जाइंट जो था वो बच्चों के साथ वहाँ पर खेल रहे थे, सारे बच्चों के साथ मिलके यहाँ वहाँ भाग रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन वो जो छोटा बच्चा था जिसने सेल्फिश जाइंट को प्यार किया था, जिसने सेल्फिश जाइंट ने जिसको गोदी में उठाया था, वो बच्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता था। तो सेल्फिश जाइंट जो था रोज़ उस बच्चे को ढूंढते थे, रोज़ पूछते थे। तो वो पूछने लगे कि सॉरी, बाकी बच्चों से पूछते थे कि क्या तुमने उस बच्चे को देखा है, लेकिन बच्चे बोलते थे कि नहीं, हमने तो उसको कभी नहीं देखा। तो इस तरीके से ईयर्स और ईयर्स बीतने लगे और सेल्फिश जाइंट जो था वो थोड़े से बूढ़े हो गए, लेकिन वो बच्चा दोबारा से लौट के नहीं आया और सेल्फिश जाइंट उसी बच्चे का रोज़ इंतज़ार करने लगे। फिर सेल्फिश जाइंट को एहसास हुआ कि मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे पेज नंबर 23 पे।
द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। मतलब वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सब सारे फूलों में सबसे अच्छे फूल हैं, है ना। मतलब जैसे आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो एकदम इनोसेंट होते हैं, बहुत ही डेलिकेट से होते हैं, उनको एकदम देख के मन करता है कि उनको गोद में उठाएं, उनको प्यारी करें, है ना। जब वो हंसते हैं तो हमारा भी मन अंदर से खुश हो जाता है, चाहे हम बिल्कुल भी परेशानी में हों, हम खुश ना हों, फिर भी बच्चों को देख के हमारा मन जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से सेल्फिश जाइंट को भी इस चीज़ का एहसास हो गया, और जो सेल्फिश जाइंट था वो क्योंकि काफ़ी एज हो गई थी उसकी, तो वो अपना मतलब घर में रहता था, ज़्यादा समय तक घर में रहता था, और वो कोशिश करता था कि मतलब वो बच्चे आए खेलें तो वो उस छोटे से बच्चे को ढूंढ ले, वो जो छोटा बच्चा जिसने सेल्फिश जाइंट को गोदी में, जिसने सेल्फिश जाइंट को किस किया था, लेकिन वो बच्चा रोज़ नहीं आता था। फिर एक दिन क्या हुआ, सेल्फिश जाइंट ने जो मॉर्निंग में उठा और उसने देखा कि अपने घर के एक उसी गार्डन के एक कॉर्नर पे उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, वही छोटा सा बच्चा खड़ा है। उसने अपनी आंखों को रब किया कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो गया। फिर उसने देखा कि एक जो पेड़ था उसमें गोल्डन कलर के ब्रांचेस हो गए थे और सिल्वर फ्रूट्स आ गए थे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई पेड़ जो है वो गोल्डन हो जाए और उसमें सिल्वर फ्रूट्स आ जाएं, लेकिन ये वही पेड़ था जिस पेड़ के नीचे वो छोटा सा बच्चा खड़े होकर रो रहा था और जिसको सेल्फिश जाइंट ने अपनी गोद में उठा लिया था। तो ये देख के सेल्फिश जाइंट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि गोल्डन ब्रांचेस हो गई और सिल्वर फ्रूट्स आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, सेल्फिश जाइंट भागता भागता उस पेड़ के पास आया, और उस पेड़ के पास आया, वहाँ पर उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा है, और उस छोटे से बच्चे को देख के सेल्फिश जाइंट को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि हु डेयर टू वूंड दी ये जो है ये मतलब पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो दी का मतलब होता है यू, ठीक है। किसने हिम्मत की तुम्हें वूंड देने की, वूंड मतलब घाव, आप समझते होंगे। तो वो जो छोटा सा बच्चा था उसके दोनों हैंड्स में और दोनों लेग्स में आयरन की जो नेल होती है, यू मे बी यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आयरन नेल, जो कील होती है आप वॉल पे लगाते हैं, वो दोनों हाथों और पैरों में चुभाई हुई थी, जिससे कि उस दोनों बच्चों के हाथों से खून बह रहा था। तो सेल्फिश जाइंट उस बच्चे को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और चिल्लाने लगा कि तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें ये घाव दिए हैं, और मैं जाके उसको मिटा मतलब मार दूंगा, या जो भी उसके मन में उस टाइम आ रहा था। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उस बच्चे ने बोला कि नहीं, ये कोई ख़राब मतलब निशान नहीं है, ये तो प्यार के निशान है, ये लव के निशान है, ऐसा बोलते हुए फिर सेल्फिश जाइंट ने बोला कि मतलब मुझे आप बताइए कि क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों, मतलब आपको चोट लग गई है। ऐसा बोलते बोलते वो घुटनों के बल वहाँ पर बैठ गया। और फिर क्या हुआ, सेल्फिश जाइंट जो था वो, क्योंकि वो एजिड, उसकी काफ़ी एज हो गई थी, तो सेल्फिश जाइंट घुटनों के बल बैठ गया और उस बच्चे से पूछने लगा कि व्हाट हैपेंड टू यू। आफ्टर दैट द चाइल्ड स्माइल्ड एंड व्हाट ही डिड, उसने उस सेल्फिश जाइंट से उस बच्चे ने बोला कि आप, क्योंकि तुम्हारा गार्डन बहुत खूबसूरत है और इस गार्डन में बच्चे बहुत सारा खेलते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में ले चलूँगा। कौन सा गार्डन, पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चे उस दोपहर को भागते हुए उस गार्डन में खेलने आए तो उन्होंने देखा कि सेल्फिश जाइंट की डेथ हो चुकी थी और वो उसी पेड़ के नीचे उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, और वो पूरी कवर्ड थी वाइट फ्लावर्स से। उस पेड़ से झड़के जो सिल्वर के फ्लावर्स थे, वो वाइट फ्लावर्स से सेल्फिश जाइंट की बॉडी पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी। और ये उन बच्चों ने देखा सीन उस दोपहर में। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई नो यू हैव रेड इट इन योर प्रीवियस क्लास। नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि आपको ये बताना है कि वो जो छोटा बच्चा था वो कौन था एक्चुअल में। यहाँ पे आपको हिंट मिल गया है स्टोरी में। अगर मैं डाउट सेशन ले पाई, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट वेबिनार आई एम टेकिंग, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 5-10 मिनट का लूँगी, तो उसमें आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हु वॉज दैट लिटिल चाइल्ड हु came in the selfish giant's garden. So this was the beautiful story. I'll share the PDF of the question answers. Do complete in your notebook and do complete the previous work also. Here you can see 2 quotes are given here. Think it over. Selfless love involves suffering for others,
ओइंग थिंग्स इज़ ह्यूमन, शेयरिंग देम इज़ डिवाइन। देखिए 2 थॉट्स हैं, आप इन दोनों थॉट्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे बिफोर यू स्टार्ट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। पहला थॉट क्या बोल रहा है कि सेल्फलेस लव, ऐसा लव जिसमें कि सेल्फलेस हो, मतलब आप सिर्फ खुद के बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। और लव इन्वॉल्व सफरिंग फॉर अदर्स, और जो ऐसा प्यार होता है वो दूसरों की सफरिंग्स में भी होता है, मतलब दूसरा कोई सफ़र कर रहा है उसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप का प्यार आपको किसी से करना चाहिए। आपके जैसे आपका पेरेंट्स करते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं जैसे एक्चुअल में वो ही बीमार हो गए, वो आपकी इस तरीके से सेवा करते हैं, है ना, आपकी देखभाल करते हैं। और ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस वो आपसे रखते हैं जब आप बड़े हो जाएं और आपके पेरेंट्स आपके मतलब उनकी एज ज़्यादा हो जाए, वो अपना काम ना खुद से कर पाएँ, तो उस टाइम आप उनकी ऐसे ही प्यार से देखभाल करें। द सेकेंड थॉट इज़ ओइंग थिंग्स इज़ ह्यूमन, मतलब चीज़ों को अपना बताना, जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी डेस्क है, ये मेरा मोबाइल है, ये क्या है, ये वो एकदम ह्यूमन है। लेकिन शेयरिंग देम इज़ डिवाइन, लेकिन उन चीज़ों को शेयर करना ईश्वरत्व है, मतलब उन चीज़ों को आप अगर दूसरों से शेयर कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत ही डिवाइन गुण है, बहुत ही अद्भुत गुण है ना। इसीलिए हमेशा बताया जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी की केयर कर रहे हैं तो अपनी चीज़ें भी आपको उनके साथ शेयर करनी चाहिए। ओके, सो इन दिस वे द ब्यूटिफुल स्टोरी इज़ completed. Do complete the written work in your notebooks. Thank you and have a nice day everyone.